Everyone attend your call. Roll number 5, Present, sir. 6, Present, sir. 12, 12 Asutosh, 13, Yes, sir. 16, 16, Jatin Arya, Kunal, 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. हाँ जी, sir. 23, Yes, sir. 24, 24 Nitesh Sharma, 31, 31, 32, Present, sir. 33, 31, sir. Present, sir. and 35. Present, sir. आप कहाँ गायब हो गए थे रोहित? सर कुछ काम था, आउटसाइड दिल्ली गए थे, इसलिए सर अटेंड नहीं कर पाए। एनीवन रेस्ट? किसी का अटेंडेंस रह गया हो? किसी का अटेंडेंस रह गया हो? नो? Okay, yesterday we have discussed the radiation for the error temperature measurement by the help of thermocouple. Okay, yesterday we have discussed the error measured by the thermocouple, and that thermocouple is that measured by the two methods. One is the direct measurement and another is with shielded measurement. Okay, and we know that the radiation of the shielded around the thermocouple by reducing the emissivity of the thermocouple by help of the sensors or junctions. For this purpose, the junctions may be coated with the material having the low emissivity is like aluminum, zinc and chromium. है ना, ये सारे मटेरियल हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग ही हम कंसीडर करते हैं. Okay, now today we have discussed, so we know that the solar radiation, this is the most important in solar radiation. Nowadays at present, the solar radiation and the greenhouse effect is the most important things, you know, solar radiation and the greenhouse effect, right? The second terms we have discussed, the greenhouse effect, right? This is the most important thing in the radiation. Nowadays, we this is the रेडिएशन इन कंप्लीट वर्ल्ड सर्कल पे चल रहा है ये चीजें, है ना. तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस द सोलर रेडिएशन.
first we have discussed the solar radiation. In the solar radiation, first of all, draw the diagram in solar radiation for the space. Solar radiation. We know that suppose अर्थ जो है consider is like that. We know that earth surface, here the earth surface, earth surfaces, and this is the earth atmosphere, earth atmosphere. As we know, अर्थ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सन की रेज, sun rays is there. If the sun rays is there, that means reflected is also there, है ना, reflected भी होगा, like that, go or in on, एक बार आया और इसे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है. नाउ वी नो कि जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन इज टू बी देयर, होगा ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद. दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन इज देयर. जब नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट मीन्स दिस इज द टर्म्स is this is the terms is the sun energy to their is angle is theta. We have considered the theta. That means resolution होगा, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो थीटा डिग्री का क्या हो जाएगा, gn equals to go in upon equals to out, है ना, that is the cos theta. This is the cos theta. मतलब सन की जो सोर्सेस है ना, सन की जो सोर्सेस है, दैट सोर्सेस ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम. तो वी कैन से द सन इज सोर्सेस. हम क्या कह सकते हैं कि जो सन की जो सोर्सेस है, सन इज द सोर्सेस ऑफ all forms of the energy in the solar system. The sun's
energy reached earth purely by irradiation. क्या मिल रहा है हमें, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्योरली बाय द रेडिएशन. ठीक है. हमें मालूम है कि सन की जो स्फेरिकल शेप है, जो रेडियस है, वो हमारा 1.39 मल्टीप्लाई 10⁹ मीटर है. जो रेडियस है, दिस रेडियस. ओके, दिस रेडियस हमें मालूम है कि सन की जो रेडियस है, तो द टेम्परेचर ऑफ द सन इज वेरीज फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस. आपको ये पता देख लगता होगा ना कि कहीं पे आपको कहीं ज्यादा सन की रेज अगर डायरेक्ट पड़ रहा है तो हमें हॉट महसूस होता है, और कहीं पे कोल्ड महसूस होता है ना. राइट, द टेम्परेचर वेरिएंट होता है. राइट, तो वी कैन सी द सन हैज a spherical of radius is 1.39 multiplied 10⁹ meter radius. The temperature of the sun varies from its centers to the surface. Right, the temperature जो है, we know कि temperature इनर मोस्ट कोर की जो टेम्परेचर होती है, बाय हेल्प ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज इनर मोस्ट कोर की वैल्यू जो होती है, दैट इज द 8 मल्टीप्लाई 10⁶ केल्विन टू 14 मल्टीप्लाई 10⁶ केल्विन होती है इनर मोस्ट कोर की. और आउटर सरफेस की होती है आउटर सरफेस 5762 केल्विन. राइट. Similarly, the sun is varies from the center surface, that is 10⁵, है ना, kg per meter cube to 10⁶. Right. In the core of the sun, that the nuclear radiation of continuous due to extremely high temperature, जो सन की रेज आती है, that high temperature and pressure and the matter that is called is the plasma state. That is called the plasma state. Right, got it my point? That is called the plasma state. Also we know that the earth is get only the fraction of the sun energy because the sun is subtend to the angle of 32° on the earth of the surfaces. हमें ये मालूम है कि जो अर्थ की जो फ्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जी है, बिकॉज दैट सब्सटेंस टू द 32° एंगल, मतलब जो यहाँ पे थीटा दिखा रखा है, दैट इज इक्वल्स टू अप टू हियर द 32° इज देयर. राइट, and also the average of the solar radiation
that reaching to the earth of the surfaces can be worked out the heat of the transfer radiation, and that is called the geometrically shapes, right? That is called the geometrically shapes. is heat is radiation, जो हमें heat मिल रहा है by this one the according to the radiation of heat transfer relation. जो heat transfer जो हो रहा है that is the heat transfer relation. और जो solar, that is called the solar constant, जो इसको बोलते हैं हम solar constant, right? इसे हम बोलते हैं solar constant. The solar constant is always equal to, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है हमारा, सोलर कांस्टेंट है कांस्टेंट होता है 1353 वर्ग मीटर स्क्वायर, और इसको हम डिनोट करते हैं इससे ISC, that is denoted by the ISC. So according to this, due to the very small eccentricity of the sun, the distance is varies from the between the sun and the earth. It is also varies from the time of the year. Due to this variation, the radiation is estimated by the sun. होता है ना, कहीं जैसे विंटर सीजन है, समर सीजन है, तो हमें ये चीजें पता चलता है ना कि हीट जो है वो कभी कम है और ज्यादा है ड्यू टू दिस वेरिएशन. According to the WRC, what do you mean by the WRC? WRC, World Radiation Center. क्या है? वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर. That value of the solar constant as, इन्होंने क्या निकाला था? The value of the solar constant as, that is 1367 मीटर स्क्वायर. और इन्होंने ही वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर जो है, इन्होंने ही डिनोटेड किया था क्या? I on और GO. That is the intensity of the solar radiation of the normal surfaces. That is फिगर में मैंने लिखा है क्या? GN equals to GO cos theta. On this radiation to the receive of the earth is surfaces after the solar radiation have the transverse together the to the atmosphere, that is called the tricle something, क्या बोलते हैं उसे? I forgot about the word. Please just a minute. Terrestrial surface terrestrial radiation बोलते हैं उसे. That is called the terrestrial radiation. Okay, मतलब कि जो अर्थ जो सरफेसेस है आफ्टर द सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के बाद जो ट्रांसवर्स हो रहा है, जो लेयर है, जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर है,
ये जो लेयर है ना, एटमॉस्फेयर में दो एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द, जो लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर में इसकी स्पेलिंग होती है, दैट इज कल, राइट। और ऑलवेज द मेजर the the radiation that is received on the surfaces of the outside the atmosphere is called the extra traditional radiation is there. Okay, and the radiation of the range of the wavelength, जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, that wavelength as a spectrum of the solar radiation, that is called the solar radiation. इसलिए इसी चीज को हम यूज करते हैं कि किसमें, दैट इज यूज द सोलर पावर एनर्जी, है ना, सोलर सिस्टम है ना। आज की डेट में जो भी चीजें जो यूज हो रही है नाउ ए डे, जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, जो सोलर एनर्जी मिल रहा है, दैट सोलर एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसे हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। बैटरी लगा के सम सोलर एनर्जी को, जिसमें कि थिन फिल्म हम यूज करते हैं, राइट। तो सोलर पावर एनर्जी दैट इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की डेट में जो हम यूज करते हैं। एंड वी नो दैट दिस इज द ग्लोब radiation, globe radiation in the sum of the beam radiation, this is the direct radiation through the, जब स्काई बिल्कुल क्लियर होता है ना, जैसे क्लाउडी होगा तो हमें डायरेक्ट सन नहीं मिलता, जब स्काई जो है वो क्लियर होता है तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट रेडिएशन इज देयर, है ना, एटमॉस्फेरिक। नो डस्ट, नो गैस, नो वेपर, डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, सन की रेज मिलता है, राइट। एंड solar energy is called utilized by the various application, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, लाइक दैट डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन, पावर जनरेशन, सोलर सेल, है ना, इन सभी जगह हम यूज करते हैं सोलर एनर्जी, राइट। सोलर एनर्जी में जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन होता है स्पेक्ट्रम की, दैट स्पेक्ट्रम की परसेंटेज होता है, वी कैन राइट हियर अल्ट्रा वायलेट, आपने नाम सुना भी होगा, है ना, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेंज होता है, दैट इज ऑल्सो वी नो दैट की इनविजिबल रेंज, इनविजिबल रेंज, इनविजिबल रेंज दैट इज इक्वल टू होता है 8%। 8% का मतलब है कि हम उसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि 0.02 म्यू टू 0.4 म्यू, राइट। जो विजिबल रेंज होता है, दूसरा जो होता है विजिबल रेंज, ये चीजें कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये यूज होगा, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, आप याद रख लीजिएगा। विजिबल रेंज होता है दैट इज कॉल्ड द 46%, ये होता है आपका 0.4 म्यू टू 0.4
8 और एक आपने नाम सुना होगा इंफ्रारेड, आपने नाम सुना होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड भी जो है वो आपका इसके बाद वाली टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड आल्सो द इनविजिबल रेंज, दैट इज आल्सो द इनविजिबल रेंज। इनविजिबल रेंज, ये भी आपका 46% ही होता है, मतलब इसको अगर डिनोट करते हैं तो 0.8 म्यू टू 800 म्यू। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर। ये जो चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड और सोलर एनर्जी की कहाँ पे यूज करते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से क्या एंगल होता है, राइट, इंटेंसिटी क्या होगा, रेडिएशन जो वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर है उन्होंने सोलर की कांस्टेंट है जो कि कितना वैल्यू जो उन्होंने माना है, that is use the solar radiation of the system, and also we have used the solar panel system। हम घरों में भी जो आज भी जो बिजली जो हम यूज कर रहे हैं वो सोलर पैनल को हम यूज कर सकते हैं, राइट। सम आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं सोलर सिस्टम का, जैसे ट्रैफिक रेड लाइट है ना, ट्रैफिक रेड लाइट है, ट्रैफिक रेड लाइट के पास आप जितने भी रेड लाइट जो ट्रैफिक रेड लाइट है सारा सोलर सिस्टम से चलते हैं, एज यू नो, राइट। और जितने स्टॉपर अगर लगा होता है, जितनी गाड़ियां जंप करेगी उतना ज़्यादा एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी जो है वो उसे हम मैकेनिकल एनर्जी को फिर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके का प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं, राइट। सेकेंड टर्म्स वी हैव डिस्कस, सेकेंड टर्म्स है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ ऐसा इसमें नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द, that is the, it is called a layer of the like gases of the greenhouse, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है कि दिस इज द लेयर विच इज एक्ट लाइक ए ग्लास इन द ग्रीन हाउस। किसी हाउस में अगर हमारा जैसे ग्लास लगा होता है, शीशा लगा होता है ना, तो आपने देखा होगा कि ग्लास जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। जैसे अपने कॉलेज में लगा हुआ है ना, शीशे लगे ना, जैसे लाइब्रेरी के पास या फ्रंट में, वो क्या होता है कि दैट इज द ग्लास जो है वो इफेक्ट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट जो है वो अंदर नहीं आने देता, दैट इज कॉल्ड द gases is called, that is called the greenhouse gas, right? And the greenhouse effect is the solar heat, that wavelength is lambda equals to 0.3 to 3 mu। ग्रीन हाउस की जो इफेक्ट होती है, इफेक्ट द सोलर heat of salt wavelength, that is lambda equals to 0.3 to 3 mu, that is the interior of the glasses of this house, and due to this radiation, है ना, radiation,
the glass is converted into the heat having a long wave radiation. long wave radiation मतलब the value of the long wave radiation that is greater than 5 nanometer, right? Long wave radiation. So wave the radiation are the reflected to the back by the glass of the heat is tapered to the inside of the glasses house that keeping the plant and green is low temperature to the region. उससे बाहर के टेम्परेचर ज्यादा होगी ग्लास की जहां सनराइज पड़ रहा है, और ग्लास से अंदर की जो टेम्परेचर होगी वेरी लो होगी। ठीक है। दैट ग्रीन हाउस, द मेन ग्रीन हाउस जो है जिसको हम बोलते हैं द ग्रीन हाउस आर लाइक दैट, द मेन ग्रीन हाउस गैस क्या होता है CO2 एंड जो गैस होता है CH4। जैसे हमारा सोलर हीट इंटर कर रहा है टू द लेयर ऑफ द गैस, तो इसी तरह से जो रेडिएशन है दिस रेडिएशन इज 0.3 टू कितना, लेमडा की वैल्यू कितना लिखा, 0.3 टू 0.03 टू 3 तक, है ना। दैट इज रिलेटिव टू द कूलर टू द रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, but the radiation is absorbed by the layer and the gases that reflect to the back as a radiation of the energy of the earth surfaces, है ना। that is also the energy of the earth surfaces, अर्थ सरफेसेस पे, जिसको हम आज की डेट में हम बोलते हैं क्या, वी नो दैट कि जो अर्थ पे टेम्परेचर ऑन द अर्थ है ना, अर्थ सरफेसेस जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्लो क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल वार्मिंग पे वर्क कर रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है इसके ऊपर लगा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग में भी हैव ए जो हीटिंग है दैट इफेक्ट इज द इन द लॉन्ग रन, मतलब ये चलता रहेगा ये चीजें, और इससे लोग जो है इसकी इसी के ऊपर जो है वो ज्यादा रिसर्च हो रही है ग्लोबल वार्मिंग पे। क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, कोई बता सकते हैं? ड्यू टू द pollution, due to the industrial process, due to the power plant, है ना, right, due to the industrial gases is there, तो इसके कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होगी। Got it my point everyone? Anybody any questions? Because 1.5 minutes is there. किसी को कोई क्वेश्चंस हैं? Anybody any questions? Now अब आपकी इस यूनिट में only for rest is only for the numerical बचा है आपका। किसी का अटेंडेंस रह गया हो, किसी का अटेंडेंस रह गया हो तो बताइए। सर रोल नंबर 16। 16, अच्छा ठीक है, अभी लगा दूंगा। देखिए आपका ये सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी पूरे यूनिट में, यू कैन सी हियर। अगर आपका सिर्फ न्यूमेरिकल छोड़ के, न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा कल से,
और आप देखिए ये है ना, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन क्लास लूंगा अभी, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट कंप्लीट है। कुछ रह गया हो तो आप बताइए। नो? नो सर। रोल नंबर 16।